अलग जाना है। We need to decide whether we want to be submissive according to God's design or we want to move away from God's design. So these were the 2 points that we looked at last week. और ये हमने पिछले 2 मुद्दे पिछले हफ्ते हमने ध्यान किए। To the husbands love, पतियों से कहा था कि प्रेम करें, to the wives submit. और पत्नियों से कहा था कि अधीन रहे। Both are difficult tasks. और ये दोनों मुश्किल काम है। Today I want to talk about another difficult task for men. और आज मैं एक और मुश्किल काम पतियों के सामने रखना चाहूँगा। And that is lead. और वो है नेतृत्व देना। Now this is a many of you might ask, this is a very easy task for men to do. और आप में से कई लोगों को ये लगेगा कि ये तो पुरुषों के लिए बहुत आसान काम We है। find that verse Ephesians chapter 5 verses 23. और एफेसियों 5:23 में हम पढ़ते हैं। It says the husband is the head of the wife. वहाँ लिखा है कि पुरुष स्त्री का सिर है। And just as Christ is the head of the church, the body of which he is a savior. और जैसे ही मसीह कलीसिया के सिर है और उस देह का वो उद्धार करता है। In 1 Corinthians chapter 11 verses 3, और पहला कुरिन्थियों 11:3 में it talks about I want you to understand that Christ is the head of every man and the husband is the head of his wife and God is the head of Christ. और वहाँ पे 11:3 में ऐसे लिखा है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर। This is a very simple thing for us. और ये हमारे लिए बहुत आसान सा In चीज़ India, और खासकर भारत में husband being the head of the house comes very naturally. और एक पति घर का सिर होना वो कोई असंभव, वो बहुत ही साधारण स्वाभाविक रीति से आता But a है। husband leading the house does not come naturally. लेकिन एक पति उस घर का नेतृत्व देना वो स्वाभाविक रीति से नहीं आता। Leading has been a struggle for man from the beginning. और परिवार का नेतृत्व देना पुरुष के लिए शुरुआत से ही एक मुश्किल काम Which was है। the first family? सबसे पहला परिवार कौन है? Adam and Eve. आदम और हवा। Adam had a struggle in leading his family. आदम के पास अपना परिवार को नेतृत्व देने का काम से वो बहुत संघर्ष करता था। You see, when we read about the fall, देखिए जब हम उनके गिरने के बारे में पढ़ते हैं, it's a very famous story for us. We've read it in Sunday school. और संडे स्कूल में हमने कई बार ये सीखा है, हम ये कहानी से हम सब परिचित हैं। The woman takes the fruit, eats of the fruit which God had said not to eat, and she passes it on to him. और स्त्री उस फल को लेती है जो फल परमेश्वर ने खाने से इनकार किया था, उसे खाती है और वो अपने पति को भी देती है। He takes it, he eats it, both of them fall into sin. और वो भी उस पत्नी से लेता है, खाता है और दोनों पाप में। And then God comes and God punishes all three, man, woman and serpent. और परमेश्वर आता है और परमेश्वर तीनों को दंड देता है, पति, पत्नी और उस सांप को। If you go to Genesis 3 verses 14, यदि हम उत्पत्ति 3 के 14 में पढ़ें, it says the Lord said to the serpent, because you have done this. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने ऐसे किया। And then he begins to curse the serpent. और फिर बाद में वो उस सर्प को श्राप देता है। And then in the 16th verse, God just, when he curses, he just tells the woman, listen, this is the curse that I'm going to give you. To the woman he says, and he begins to curse the woman. और 16वें आयत में परमेश्वर पत्नी से कहता है कि तूने ये काम किया तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, और प्रभु उसको श्राप देता है। But before he curses the man, listen to what he says in the 17th verse. लेकिन पुरुष को श्राप देने से पहले ध्यान दीजिए 17 आयत में वो पुरुष से क्या कहता है? Because you listened to your wife and ate from the tree which I commanded you, you must not eat. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष से फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाए, उसको तूने खाया है। God expected man to be the head of the house and to lead the family. परमेश्वर ने आदम से ये उम्मीद रखा था कि जब उसको परिवार का सिर बनाया है तो उस परिवार का नेतृत्व He करे। wanted man to assume responsibility of his house. परमेश्वर चाहता था कि आदम अपने परिवार का जो जिम्मेदारी है अपने कंधों पे उठाएगा। But that is the one thing that Adam from the beginning faced in his life. लेकिन वही बात है जो आदम ने शुरुआत से उस काम को करने से वो पीछे हो गया। And the solution Adam found is the same solution men and husbands and fathers today find in their families. और वही
जो उत्तर जो आदम ने परमेश्वर को देने के लिए ढूंढा, वही उत्तर आज हम भी पिता होने के नाते, पति होने के नाते, आज के परिवारों में भी हम यही करते हैं Pass the blame. कि जो दोष है अपने पत्नी के ऊपर डाल Pass the दे, responsibility. जो जिम्मेदारी है पत्नी के ऊपर डाल दे। We can say, husbands are quick to say, she manipulated me, she deceived me, and different words we use for not taking up responsibility. और हमारे जिम्मेदारी ना लेने का जो वजह है वो हम अपने पत्नियों के ऊपर डालते हैं और कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मेरे मन को फिरा दिया, इस करके हम दोष पत्नी के ऊपर डालते हैं। But God does not excuse our choice. लेकिन हमारा ये जो चुनाव है उसको परमेश्वर आसानी से छोड़ने तैयार नहीं है। God's punishment reflected his disappointment in man's leadership. और परमेश्वर ने उसे दंड दिया, उसका वो हमें ये दिखाती है कि परमेश्वर आदम का अपना नेतृत्व, अपने कंधों पे परिवार का नेतृत्व लेने से आदम जो पराजित हुआ उस काम से परमेश्वर नाखुश थे। Husbands understand leading the family is hard work. पतियों इस बात को समझ ले कि अपने परिवार का नेतृत्व करना मुश्किल काम है। How can you lead your spouse? अपने पत्नी को कैसे आप आगे नेतृत्व में ले जा सकते? 1 Peter 3 verses 7. पहला पत्रुस 3:7। I want you to read it. मैं चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें। Somebody, 1 Peter 3 verses 7. कोई पढ़े पहला पत्रुस 3:7। Husbands in this. पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। You see, when we read these words, देखिए जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, the only thing men see in this verse, पति सिर्फ एक चीज इस आयत में देखते हैं और वो क्या है? weaker sex. हम ये पढ़ते हैं कि वो बलहीन पात्र है। That's all that we see. हम सिर्फ बस वही देखते And हैं we use that against our spouse. और वो हम अपने पत्नियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। But God is not speaking about women being just a weaker sex. लेकिन परमेश्वर स्त्री को एक बलहीन पात्र सिर्फ समझकर नहीं बात करते। God's focus in that verse is that men show honor to your wives. परमेश्वर का उस आयत में परमेश्वर का ध्यान यहाँ पे है कि हे पतियों अपने पत्नी को ऐसे समझकर उन्हें आदर दे। Consider your wives. अपने पत्नी का ध्यान दे। Understand that they are also heirs of the promise of the gracious gift of life. इस बात को समझ ले कि परमेश्वर के द्वारा दी गई अनंत काल के जीवन के वो भी वारिस है। In heaven, स्वर्ग में there is not going to be a separate place for your spouse. आपके पत्नी के लिए कोई अलग सा स्थान वहाँ पे नहीं We है। are going to be there together. हम वहाँ पे एक साथ होंगे। We are not separately created. हम अलग अलग नहीं बने। God has created us as equals. हमें परमेश्वर ने एक समान बनाया है। Weaker does not mean that we are not equal. और बलहीन पात्र का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे कम है या छोटे हैं। It just means that we have different responsibilities. इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि उनके जिम्मेदारियां अलग है, हमारी जिम्मेदारियां अलग If है। you want to lead your wife, यदि आप अपने पत्नी को पत्नी का नेतृत्व करना चाहते हो, you begin to honor your wife. यदि आप तो आप क्या करें? अपने पत्नी का आदर करें, You begin to consider your wife. उसका ध्यान दें She will blossom. और वो खिलने लगेगी। It's like how you take care of a flower. वो इस प्रकार है कि जैसे आप एक फूल का ध्यान करते हो या उसका देखभाल करते हो। It takes a lot of care and concern. उसका देखभाल करने के लिए बहुत प्यार की जरूरत है। John Chrysostom, he talks about marriage. और जॉन क्रिसोस्टम जब पारिवारिक जीवन के बारे में बात करता He है, says in marriage we do not choose another queen. वो कहता है कि विवाह में हम एक दूसरे रानी को चुनते नहीं है। We do not choose a queen when we get married. जब हम शादी करते हैं तो हम एक रानी को नहीं चुनते। We choose a second king in marriage.
और हम एक दूसरे राजा को चुनते हैं। What does that mean? इसका क्या मतलब It होता है? means we have equal place. इसका मतलब है कि हमारा स्थान एक जैसा है। In marriage, we are equals. विवाह में हम एक जैसे हैं। In responsibilities, we have differences. जिम्मेदारियों में हम अलग हैं। To fulfill those responsibilities, और उस जिम्मेदारियों को पूरा करने to के लिए lead our spouses in our wives in the right direction, और अपने पत्नियों को, अपने परिवार को सही मार्ग पर ले चलने के we लिए need to honor them. हमें उनको उनका Sorry, 1 Timothy 2 verses 8. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. 2. Yeah, just read it. सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। This is a command God gives men. और ये परमेश्वर के द्वारा पुरुषों को दी गई एक आज्ञा है। But there's a struggle within us in our own cultures. लेकिन हमारे जो संस्कृति है उसी में हम संघर्ष करते हैं। We often lift up our hands against our spouses. हम हाथ कहीं बार अपने पत्नी के खिलाफ उठाते हैं। The only reason why we need to lift up our hands और एक ही कारण वचन के अनुसार दिया है जिससे हम अपना हाथ उठाए, is to pray. और वो इसलिए है कि हम प्रार्थना Is to करें। lead our spouse in prayer. वो इसलिए है कि हम अपने परिवार को प्रार्थना में आगे It's बढ़ाएं, to lead our family in prayer. प्रार्थना में नेतृत्व दें। But too often we see लेकिन कई बार हम देखते हैं who is the one who initiates the prayer in the house. घर में, परिवार में प्रार्थना का नेतृत्व कौन देता है? Who is the one who prays in the house? घर में प्रार्थना करने वाली कौन है? Often men begin to tell their wives, "You pray." कई बार क्या होता है, पुरुष अपने स्त्री को कहते हैं, पत्नी को कहते हैं कि तू प्रार्थना कर। Often we find it is the women who say, "Let's pray together as a family." कई बार हम देखते हैं कि घर की जो स्त्रियां हैं वो अपने पति से और बच्चों से कहती है कि चलो बैठ के प्रार्थना करते हैं। And men are too often found lifting up their hands in anger, और कई बार देखते हैं कि पति गुस्से में अपना हाथ उठाता है, or lifting up their hands in argument. या तो फिर वाद विवाद में अपना हाथ उठाता Some है। of you might not have hit your spouses, you hit your wives. और आप में से कई लोगों ने कभी अपने पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया But होगा। we have banged doors, we have beaten things. लेकिन हमने दरवाजों को मारा है और भीख पे मारा है। Sometimes we have just taken out our anger on phones, we have taken out our anger on plates, we have taken out our anger on anything, any furniture that we can see around our house. और कई बार हमने अपना जो गुस्सा है वो फोन के ऊपर उतारा है, ग्लास के ऊपर उतारा है, प्लेट के ऊपर उतारा है, या तो फिर कोई भी फर्नीचर हमारे घर पे जो दिखता है उसके ऊपर उतारा You है। know, one thing that we have seen, especially as we counsel families, और एक चीज जो हमने अक्सर देखा है जब हम परिवारों को काउंसिल करते हैं, several men have lost their phones because of anger. और अनेक पतियों को हमने देखा है कि जब उनके पत्नी के साथ झगड़ा होता है, लड़ते हैं, तो उनका फोन नाश कर देते हैं। Screens are broken, batteries are fallen apart. और फोन टूट जाता है, उसके बैटरी अलग अलग तितर बितर हो जाता है। One thing we as a family had thought about early in our married life, और हमारे पारिवारिक जीवन की शुरुआत में ही एक निर्णय जो हमने लिया था, irrespective of how many fights we have in the house, चाहे घर के अंदर जितना भी हमारे वाद विवाद क्यों ना होता हो, and yes, a pastor and family will fight. और हाँ, ये बात सही है कि पास्टर और उसके पत्नी भी घर में लड़ते हैं। At the end of the day, लेकिन घर के दिन के अंत में we would sit down together, हम एक साथ बैठेंगे discuss it all, और उसको एक दूसरों से चर्चा करेंगे and pray. और फिर साथ में The प्रार्थना first करेंगे। couple of months of our married life, और हमारे विवाहित जीवन के पहले 2-3 महीने we used to sleep at 3 and 4 in the morning. और रात के 3-4 बज जाते थे बात करते करते। But nowadays, लेकिन आजकल it's a bit more easier. वो आसान हो गया है। But we still do have our own struggles. लेकिन फिर भी हमारे अपने संघर्ष है। As a husband, एक पति होने के it is नाते my responsibility वो मेरी जिम्मेदारी है to take the first step and say, listen, let's diffuse the anger. कि मैं पहला कदम लूं और अपने पत्नी से कहूं कि देखिए अब हमारा गुस्सा जो है हम छोड़ देते हैं। Too often we have heard from wives,
और कई बार हम अपने पत्नियों से सुना We है, have heard when you counsel families, you have heard women say this very much. और कई बार जब हम परिवारों को काउंसल करते हैं, हमने पत्नियों से अक्सर सुना है, Pastor, sister, we are always the first ones to say, okay, I am sorry. और पत्नियां अक्सर कहती हैं कि पास्टर मैं ही हमेशा सॉरी पहले And बोलती then हूँ, she will say, ask him if he had, even now if he had told me sorry. और फिर वो कहती है कि पास्टर अभी भी इससे पूछो क्या इसने अब तक मुझसे सॉरी कहा है कि नहीं। Men, we are called to diffuse the anger and the situation in the house. पतियों, परमेश्वर ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी ठोकी है, हमें कहा है कि हम घर के अंदर जो गुस्सा और घर के अंदर जो वाद विवाद है उसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी He है। who speaks the first word of kindness is the greater man. और जो दया का पहला शब्द जो पहली बार बोलता है वो बड़ा है। You know, too often we say, if I say sorry first, I am less of a man. और हमें अक्सर ऐसे लगता है कि यदि मैं पहले सॉरी बोलूंगा तो मैं मर्द होने से छोटा हो जाऊंगा। If you say sorry first, यदि आप पहले सॉरी बताओ in बोलोगे, the eyes of your wife, you become a great man. अपने पत्नी के आंखों में, अपने पत्नी की नजरों में आप बहुत बड़े इंसान बन If जाओगे। you want to lead your wives, यदि आप अपने पत्नी को नेतृत्व देना honor चाहते हैं them, तो उनको आदर करें, honor them, उनको आदर करें, consider them, उनका ध्यान रखें and always be the one to diffuse the anger. और हमेशा वो व्यक्ति बने जो पहले गुस्सा शांत करने में कदम उठाता है। Second thing about leading is we need to lead our children. और नेतृत्व के बारे में दूसरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों का नेतृत्व देना Too चाहिए। often it is the TV, especially many of you are working couples. It is the TV that is leading the children. और अक्सर क्या है हमारे घरों में जो टीवी है वो हमारे बच्चों का नेतृत्व देती है। The TV becomes a husband, the TV becomes a father, the TV becomes a mother. और टीवी बच्चों का पिता और माता बन जाती है और अक्सर हमें से कई लोग दोनों नौकरी करने वाले हैं। Please do not allow the TV to become a parent to your child. कृपया इस बात का ध्यान दें कि आपके घर में जो टीवी है वो आपके बच्चों का माता पिता न बने। You need to ask the question, who's leading your family? आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि मेरे परिवार का नेतृत्व कौन करता है। You see, I was watching a video where there was a father and the mother comes home after work. और मैं एक इस प्रकार का वीडियो देख रहा था जहाँ पे माँ नौकरी से वापस घर आती The है, children come home from school. बच्चे स्कूल से घर आते हैं The mother is waiting expectantly at the door. और माँ जो है दरवाजे पे हाथ फैलाकर खड़ी है, But the children come running towards the maid of the house. लेकिन बच्चे जो है माँ के पास नहीं जाते, माँ को पार कर उन आया के पास जाते हैं जो हमेशा उनका देखभाल करती Who है। is leading your family? आपके परिवार को कौन नेतृत्व देता है? In Rome, they had a law called Patria Potestas, which means father's power. और रोम में उनके पास एक ऐसा नियम था, उसका नाम इस प्रकार था पैट्रिया पोटेस्टास, जिसका मतलब था पिता का शक्ति। It means the father can do as he wished in the house. पिता का सामर्थ्य, जिसका मतलब ये था कि पिता अपने घर में जो चाहता था वैसे कर सकता When था। a child is born, they place a child at the father's feet, between the father's feet. और वहाँ पे ऐसा रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होता है तो पिता के पैर के पास बच्चे को रखते थे। If the father picks him or her up, और यदि वो पिता उस बच्चे को उठा लेता है they keep the child. तो वो उस बच्चे को रखते थे, Else the child would be sold or left to die. नहीं तो वो क्या करते थे, उस बच्चे को बेच देते थे या तो फिर उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ देते थे। It sounds very cruel to us. हमें ये सुनकर बहुत ही निर्दयी लग रहा है। How can you allow your child to be left to die or to be sold? आप कैसे अपने बच्चे को किसी के लिए बेचने के लिए या मरने के लिए छोड़ सकते हैं? But just think about ourselves. लेकिन हमारे अपने बारे में जरा सोच के देखिए। Have our children been left to die in front of the TV? Have our children left to die in the schools? क्या हमने अपने बच्चों को
टीवी के सामने मरने के लिए छोड़ दिया है, या तो फिर क्या हमने अपने बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए छोड़ दिया है या बेच दिया है? Who is leading our child? हमारे बच्चे का नेतृत्व कौन करता It's है? biologically very easy to be a father. और शास्त्र के वैज्ञानिक रीति से अपने बच्चे का पिता होना आसान है, But it is biblically challenging to be a godly father. लेकिन वचन के आधारित एक परमेश्वर का डरवैया होकर एक पिता बनना एक कठिन काम है। One simple example is David. और एक बहुत ही साधारण एक उदाहरण है दाऊद। The Bible says he was a man after God's own heart. और बाइबल दाऊद के बारे में कहती है कि वो परमेश्वर के दिल के अनुसार एक व्यक्ति था। A great worshipper. परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति। Musician. और म्यूजिक बजाने वाला व्यक्ति। King. राजा। Warrior. और योद्धा। He had several names that you could give him. और बाइबल में उसके बारे में बहुत अलग-अलग नाम भी दिए गए। But the one thing he failed was parenting. लेकिन एक बात जिसमें वो पराजित हो गया वो है अपने बच्चों को नेतृत्व देना। One son Absalom murdered another son Amnon. और एक बेटा उसका अब्सलम, दूसरा एक बेटा अम्नोन को उसने मार दिया। His son tried killing him. और उसके अपना बेटा अब्सलम ने उसको मारने की कोशिश की। One son Amnon tried abusing his daughter Tamar. और अम्नोन उसका एक बेटे ने उसकी बेटी तामार को शोषण करने की कोशिश की। His son abused his own concubine. और अपने बेटा उसका बेटा अब्सलम ने उसके अपने पत्नियों को अब्यूज किया। It is difficult. He failed in parenting. It is difficult leading your children. और उसने एक पिता का काम करने से वो हार गया, पराजित हो गया। अपने घर का या अपने बच्चों का नेतृत्व देना मुश्किल काम है। I want to read Colossians chapter 3 and verses 21. मैं चाहूँगा कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 21वां आयत पढ़ें। Colossians chapter 3 verses 21 it says. कोलोसियों 3 का 21 में वहाँ ऐसे हम पढ़ते हैं। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. और वहाँ लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। Do not irritate. In another version it says, do not irritate your children. और दूसरे वर्षन में ऐसे लिखा है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। We do not want to destroy our children. हम अपने बच्चों का नाश नहीं चाहते। We don't want to kill them. और हम नहीं चाहते कि हम उनको मार दें। We don't want to discourage them. हम उनको निरुत्साह नहीं करना But चाहते। look into the words that we have spoken. लेकिन उन शब्दों पे जरा ध्यान दे जो हमने अपने बच्चों को बोला है। Look at the actions that we have done. उन कर्मों पे जरा ध्यान दे जो हमने अपने बच्चों के साथ किया है। Have we destroyed our children unintentionally? क्या हमने अपने बच्चों को अनजाने में This is a question that we need to ask ourselves. ये एक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना What है। will be the heritage I leave for my child? जो हेरिटेज है वो मैं जो अपने बच्चों के लिए जो विरासत छोड़ रहा हूँ वो किस प्रकार का है। Don't parent your child by accident. आप एक एक्सीडेंट के तौर पर अपने बच्चों का देखभाली ना करें। Chart a new course for the future of your child. अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक नया कहानी आप खुद लिखना शुरू करें। आमीन। हम जो पत्नियां हैं हम ये देख रहे थे कि हमें परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है या परमेश्वर के द्वारा हमें ये बताया गया है कि हम अपने पति के अधीन रहें। We were listening to as women we need to be submissive to our spouses. एक और आज्ञा है जो परमेश्वर ने डायरेक्टली पत्नियों से ऐसे कहा है कि तू ये कर। There is another command that God has given to the wives. और वो भी कुछ इसके समान ही है। And that is also something like this. हम पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 5वें अध्याय का 33। Ephesians 5 verses 33. It reads, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. वहाँ पे लिखा है पत्नियों अपने अपने पति का
रिस्पेक्ट करो या तो फिर आदर करो। It's written over here that wives, you need to respect your husbands. अब देखिए, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, हम सब जानते हैं, हम सब अक्सर ऑफिस में काम करने वाले, अलग अलग जगह पे काम करने वाले, आजकल के ज़माने में रहने वाले लड़कियां हैं। हम एक बात जो अगर कहेंगे तो ये है कि आसानी से हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट तो अर्न करना पड़ता है। We normally have a saying that respect is earned. We do not give it off very easily, especially as we are all working people. है ना, हम अक्सर ये कहते हैं और ये अक्सर ये सुनने में आता है कि रिस्पेक्ट जो है वो वैसे हम दे नहीं पाते। अगर उसमें रिस्पेक्ट का कुछ खासियत अगर दिखे, अगर रिस्पेक्ट करने लायक अगर कुछ दिखे तो मैं दूंगी। Normally we begin to say only if there is something I see in that person to be respected, only then will I respect that person. लेकिन ये जो है रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, वो शादी में या विवाहित जीवन में नहीं चलता। But normally that statement we normally don't use it in the married life. You know, विवाहित जीवन में हरकतें देखकर रिस्पेक्ट करेंगे वो नहीं हो सकता। Normally in married life, if we look at the actions and then we respect, then it becomes very difficult. और इसीलिए ही कहते हैं कि मैरिज इज हार्ड वर्क। That is why we say marriage is hard work. बहुत मुश्किल का काम है। It's a difficult task. अगर हम इस चीज का इंतजार करेंगे कि अपने पति जब ठीक हो जाएगा, अगर जब वो आदर का योग्य बनेगा तब मैं उसको आदर दूंगी, तो जिंदगी में कभी हम उनको आदर नहीं दे पाएंगे। If you begin to say when my husband begins to show actions or display actions that deserve respect, only then I will respect, then it's going to be a very difficult task. परमेश्वर के द्वारा दी गई एक आज्ञा है कि हे पत्नियां अपने अपने पति को आदर करो। According to the Bible, it is written that we wives submit your husbands, respect your husbands. तो उनके जो बिहेवियर है उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना। हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए परमेश्वर ने एक पैटर्न दिया है। We should not respond or give respect according to the behavior of our husbands, but God has given us a pattern on how to respect. ये बहुत मुश्किल काम है। It is very difficult. लेकिन इसको क्यों परमेश्वर ने ऐसा एक काम हमें दिया? But why has God given us such a task? अगर वो हमें समझना है तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन हैं। If we need to understand that, first of all, we need to understand who are we. है ना, इतना मुश्किल काम प्रभु ने हमें दे दिया। It's such a difficult task God has given us wives. एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम आदर नहीं कर सकते, उसका हरकतें देखकर आदर करना मुश्किल है, और प्रभु हमसे कह रहा है कि इसको आदर करो। A task that God has given to us is that we need to respect a husband who we feel that does not deserve to be respected. Why has God given us such a task? तो पहले हम ये समझते कि हम कौन हैं। First of all, we need to understand who am I. हम कोई एक साधारण ह्यूमन बीइंग नहीं। We are not a simple human being. हमें परमेश्वर ने कब बनाया? When did God make us? हव्वा को परमेश्वर ने कब बनाया? When did God make Eve? उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय In Genesis chapter 2. और वहाँ पे 18वें आयत हम जरा पढ़ें। In Genesis chapter 2 and verse 18, if you look. वहाँ पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? अच्छा है। In the first day of creation, when God created the first day, He began to say, "It is good." पहला दिन there was evening and morning, there was first day, और फिर परमेश्वर ने देखा it was good। हर बार Every time God created something, He said, "It is good." हर चीज को बनाया, सारे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, फिर कहा it is good। Everything that He created, after creating everything, He said, "It is good." है ना, वन के पशुओं को, घरेलू पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को, सबको बनाया और कहा it is good। After creating each thing, God said, "It is good." समुद्र को बनाया, समुद्र में रहने वाली हर चीज को बनाया और फिर कहा it is good। He created the sea and He created all the living creatures in the sea and He said, "It's good." आदम को बनाया, God created Adam. मेहनत करके बनाया, अपने हाथों से प्लान कर बनाया। He planned and He did it. He created Adam by hard work. लेकिन उसको देखकर परमेश्वर कहता है it is not good। But looking at Adam, He says, "It is not good." जरा पढ़े, Just read. उत्पत्ति 2:18 पढ़िए। Genesis chapter 2 and verses 18. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। The Lord said, "It's not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him."
परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? परमेश्वर ने हमें अपने पतियों के लिए ही बनाया। Why has God created us? God has created us just for our husbands. और वहाँ पे ऐसे लिखा है, हिंदी में लिखा है सहायक, इंग्लिश में लिखा है हेल्पर। In Hindi it is written Hindi सहायक and in English it's written helper. अब देखिए, आज अगर हम हेल्पर किसी को कहते हैं, ये मेरा हेल्पर है, वो मेरी हेल्पर है, हेल्पर अगर किसी के बारे में जो टर्म आज के इंग्लिश में या हिंदी में भी सहायक अगर हम यूज करते हैं, हमारे मन में फर्स्ट थॉट या फर्स्ट इंप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग हमारा ये है कि वो हमसे नीचे है। If we begin in today's circumstance, if we hear the word helper, we often assume that that person is subservient to us, he is under us. लेकिन परमेश्वर जहाँ उत्पत्ति 2:18 में जब हेल्पर टर्म यूज करता है, वहाँ पे हवा को आदम से कम या हवा को आदम से सबसर्विएंट नहीं बनाता। Over there, when God creates Eve for Adam, He does not create Eve subservient to Adam. देखिए, इब्रानी में जो शब्द वहाँ यूज किया गया है वो है एजर। In Hebrew, the word that is used over there is ezer. और एजर जो है उसका इंग्लिश हेल्पर ही है। In English, that word means helper. लेकिन इब्रानी में जो एजर है वो पुराने नियम में अलग जगह पर दी गई है। In the Old Testament, the word ezer or helper has been used in different places. और ये हर जो पद है वो परमेश्वर के लिए दी गई है। And everywhere that word is used, it's also used for God. जो काम मैं नहीं कर सकता, The work that I cannot do, हे परमेश्वर तू मुझे सहायता करता है। oh God, you are my helper. तू जब मेरे साथ है तब मैं ये कर सकता When you हूँ। are with me, I can do this. वो है ये शब्द एजर। That is the word ezer. और वही एजर हव्वा को जब आदम के लिए परमेश्वर बनाता है तब वो इस्तेमाल करता And है। that is the very word that God uses for Eve when God creates Eve for Adam. और इसी आयत में एक और इब्रानी शब्द है केनेक्डो। In another word in Hebrew is kenekdo. उसका एग्जैक्ट मतलब ऐसे बनता है कि फिट या परफेक्ट या सूटेबल। In the other meaning, that meaning for that word is fit, suitable, or perfect. जिसका ऐसे हुआ कि मेरे पति के लिए अगर परमेश्वर ने मुझे बनाया, If God has created my husband for me, नो मी फॉर माय, or me for my husband, बाइबल में हमेशा ये लिखा है कि पत्नी को पति के लिए बनाया गया है। everywhere the Bible says that the wife was created for the husband. तो इसका मतलब ये है कि मुझे इनको, इनमें जो कमी है या ये अपने आप जो काम करने में कमजोर होते हैं उसमें हेल्प करने के लिए मुझे बनाया। That means whatever man could not or husband could not do by himself, God has created the wife so that she will be able to help him in his weaknesses. और इसीलिए परमेश्वर हर एक पत्नी को ये आज्ञा देता है, हे पत्नियों अपने अपने पति को रिस्पेक्ट करो। That is why God gives a command to the wives so that you need to respect your husbands. वो इसलिए नहीं कि वो सिद्ध है, It is not because that the husband is perfect. है ना। एक परफेक्ट बंदे को आदर करना, रिस्पेक्ट करना बड़ा आसान है। It is easy to respect a perfect person. लेकिन जो एक इम्परफेक्ट व्यक्ति है उसको रिस्पेक्ट करने का कारण क्या है? But why is it then why we should respect an imperfect person? मनुष्य हमेशा मनुष्य जो होता है, पुरुष जो होता है वो इम्परफेक्ट हो सकता है, होता है। Every time a man is imperfect, we need to understand. I didn't mean anything when I said. तो परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं वचन के अनुसार हम सब के लिए परमेश्वर का एक डेस्टिनी है, एक God has a destiny for each one of हम us. सब के लिए एक पर्पस है। God has a purpose for each one of us. और एक चीज हमें समझना है, विवाहित जीवन में पत्नी को पति के साथ जब परमेश्वर जोड़ता है, In married life, when God joins the husband and the wife together, हम सब पत्नियों को एक बात समझना है, every wife needs to understand one thing. मेरे पति को, To my husband, for my husband, मेरे पति को उनका जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, for my husband to reach the purpose that God has planned for उस me, पोटेंशियल तक पहुंचने के to लिए reach that potential that God has planned for him, परमेश्वर ने मुझे बनाया। God has created me. वो है हेल्पर। That is the meaning of helper. हेल्पर का मतलब ये नहीं है कि हम सर्वेंट हैं। It does not mean, the helper does not mean servant. मेरे साथ मिलकर जो काम ये कर सकते हैं, The work that the husband can do along with the wife,
वो अकेले में कभी नहीं कर पाएगा। That work the husband cannot do alone. अगर ये चीज हमारे दिमाग में सेट हो If जाएगा we understand that this fact, तो फिर हमें रिस्पेक्ट करना आसान है। then it becomes easier to respect our husbands. क्योंकि क्या होता है कि जब इनके मिस्टेक्स हमारे सामने ऐसे पॉपअप होते रहेंगे, So when we see the mistakes of our husbands in front of us, इमीडिएट रिएक्शन क्या है कि उसको पॉइंट आउट करना, उसको समझाना कि ये आपने गलत किया, ये क्या है, blah, 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 the blah. immediate reaction of us, of the wife, is to point it out and begin to speak it out. जब इस तरह से हम बिहेव करेंगे तो कान उनका शट हो जाएगा। But if we begin to react in this manner, immediately he shuts down. उनका वो समझ नहीं पाएंगे कि हम क्यों, और ये सब क्यों, उनको लगेगा कि हम उनको इंसल्ट कर रहे हैं। The immediate reaction of the husband is that he feels that he is being insulted. मुझे ऐसे लगता है कि हमने एक स्त्री के बारे में पुराने नियम में पढ़ते हैं जिसने अपने पति को इंसल्ट किया। We read about in the Bible in the Old Testament about a wife who insulted her husband. वो आराधना कर रहा था He was worshiping God. और आराधना में इतना लयन हो गया कि अपने किंगली कपड़े उतार कर He began to lose himself in his worship, that he began to take off his kingly robes. अपना जो सूट कोट, अपनी पत्नी चाहती थी कि वो सूट कोट में हमेशा वर्शिप लीड करे, उसने सूट कोट उतार दिया। The wife desired that the husband would wear the suit and the coat and worship God, but he took it off. और अब क्या हुआ, उस अवस्था में वो स्त्री वो देखती है, पत्नी देखती है और अपने पति से कहती है, तूने अपने आप को क्या कर दिया सबके सामने। And the wife begins to criticize the husband and say, what have you done in front of everyone? How have you ashamed yourself? और उसका जो कहने का स्टाइल है, उससे वो पति को बड़ा इंसल्टिंग लगता है। And by the way that this lady the wife begins to speak to the husband begins to feel very discouraged. इस कहानी से हमें यह समझना है कि as wives अगर कुछ भी चीज हमें अपने पति से कहना है तो हम उसको कैसे उसको किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। So as a wife we need to understand in such a situation how do we present these things to our husband. याकूब के पुस्तक 3 अध्याय में जीभ के बारे में लिखा है। In James chapter 3 it talks about the tongue. है ना, I don't want you to read it, वो अभी पढ़े ना, घर पे जाके उसको पढ़ के देखिए। You can go home and you can read. और वहाँ पे टाइटल याकूब ने ये दिया है, The Untamable Tongue। In there the title is given the untamable tongue. हाँ, जो जीभ जो काबू में नहीं आता। The tongue that does not come under the control of और the हम person. सब स्त्रियां अपने जीभ के लिए बहुत फेमस हैं। And women, we are very famous for our tongue. और इसलिए परमेश्वर इस बात पे गौर करके कहता है, respect your husband। That is why the Bible says that you need to respect your और husbands. वो हमारे जीभ से होना जरूरी And है। that should happen through our words. और इसलिए पिछले हफ्ते और उससे पहले वाले हफ्ते में पास्टर ने जो पोस्ट-इट नोट्स दिए थे उसको इस्तेमाल करें। That is why last week Pastor had given you the post-it notes. वो पोस्ट-इट नोट्स अगर हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता, लिख के पति को कॉम्प्लीमेंट्स दे, उससे रिस्पेक्ट मिलता है, उनको अच्छा लगेगा, बूस्ट मिलेगा। If it's very difficult to speak those words out, write it out and leave it out in different places for your husband to read. I know काम बड़ा मुश्किल है। I realize that it's a very difficult task. लेकिन फिलिपियो 4:13 में लिखा है कि I can do all things through Christ who gives me strength. In Philippians chapter 4 verse 13 it says, I can do all things through Christ who strengthens me. I know, मैं स्टोरीज जानती हूँ ऐसे पत्नियों का जिनके पति अविश्वासी थे। I know stories of wives. I know experiences of wives who have unbelieving husbands. उसके स्वभाव देखकर वो रिस्पेक्ट देने का योग्य नहीं था। According to the behavior or the character of the husband, he does not deserve respect. लेकिन उस पत्नी ने ये पढ़कर सोचा कि नहीं, मैं रिस्पेक्ट करूंगी। But the wife began to read the Bible and understand, no, I need to respect my husband. और very tactfully वो हस्बैंड को रिस्पेक्ट करने लगी अपने शब्दों से। And very cleverly she begins to respect her husband by her words. और जब भी कुछ करेक्शन करना हो उसने 3 चीजें प्लान की है। And whenever she needed to correct her husband, she remembered 3 things. मैं कैसे बोलूंगी? How will I speak it out? कब बोलूंगी? When will I speak it out? मैं कहाँ बोलूंगी? And where will I speak it out? जब भी अपने पति का कुछ
गलती हमें बताना हो, it should not be disrespectful नहीं होना चाहिए. Whenever we want to correct our husbands, we should never be in a disrespectful manner. कंस्ट्रक्टिव रीति से प्लान कर हम लोग बहुत क्रिएटिव हैं, हम क्रिएटिव रीति से बता सकते हैं. We need to be very creative. We need to think it out and we need to plan. How do I talk to my husband? और प्रैक्टिकली बताएंगे तो जब वो थके हुए होते हैं और जब भूख लगी होती है तब बात ना करें. And when he's hungry, do not try to correct And him. when he is tired. And when he's tired. क्योंकि देखिए बायोलॉजिकली साइंटिफिकली अगर देखें तो ब्लड का जो शुगर लेवल कम होता है ना, तो उसका इमोशंस बड़ा वेरी करता है. Biologically, if you look, when you are hungry, the sugar level is low, and so they emotionally very fluctuating. उस टाइम पे जाके बुद्धि समझाने की कोशिश करेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा. And at that time, when you try to correct your spouse or a husband, at that moment, it is impossible to correct your husband. तो इस तरह का प्लान करें कि कब बात करें, हो सके तो और कोई नहीं, ओनली आप दोनों बंद दरवाजे के अंदर या तो फिर एक पार्क में अच्छे एनवायरनमेंट में, फिर बाद में अपने बातें करें और फिर try to always be respectful. मुश्किल काम है, but we can do all things through Christ who gives us. It is very difficult to do these things, but try to understand that through Christ all things are possible, and we need to respect our husbands in that manner. See, एक इस चित्र को अपने मन में ध्यान रखें. I want you to have this picture in your mind. ये जो पिक्चर है, अगर मैं देखूंगी मेरे लिए ये मेरा पति का पिक्चर है. If I see this is the picture of my husband. विवाह के बाद भी परमेश्वर ने परिवार को जोड़ा क्यों? पति को पत्नी को, मुझे इनके साथ क्यों जोड़ा? आपको अपने पति के साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि उसने देखा कि आपका पति अकेला है, अच्छा नहीं है, तो आपको उसके साथ जोड़ा. अब प्रभु जब आपको देखता है उसे कहना चाहिए अब अच्छा है. Why has God joined you? Because God saw that it was good for you to be with your husband. He saw that it was not good for him to be alone. God saw that it was not good for the man to be alone, and that is why God has joined you to your husband. अब जब प्रभु ने मुझे इनके साथ जोड़ा है, now when God has joined me with my husband, अब परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन को देखकर, now God when he sees our family life, अब उसको ये नहीं कहना चाहिए not good. Now he should never say not good. अब उसको ये कहना चाहिए very good. Now he should look at our married life and he should say it's very good. और वो not good का कारण हम स्त्रियां नहीं बनना चाहिए. And the phrase it is not good should never be because of us as wives. परमेश्वर जब हमारे पारिवारिक जीवन को देखता है, वो हमारे कर्मों की वजह से, हमारे शब्दों की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से परमेश्वर ये नहीं कहना चाहिए कि इसका पारिवारिक जीवन is not good. God should never looking at our actions, looking at our words, God should never say their family life is not good. Because अगर मनुष्य अकेला है, उसके लिए मुश्किल है, उसके पोटेंशियल तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है. अकेला कितना काम करेगा? If man was left to himself, it would be very difficult for him to reach his potential. How much can he chisel by himself? लेकिन जब हमें उसके साथ जोड़ा है, when God has joined you to your spouse, अपने पति का पोटेंशियल को समझे कि कहां तक वो पहुंच सकता है, उसके कैपेबिलिटीज क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, प्रभु का उसके ऊपर बुलाहट क्या है. You as a wife, you are able to understand what is the call of God over your spouse, what is the call of God over your husband, and you will be able to release him to his potential. अगर हम डिसरिस्पेक्टफुल होंगे तो वो टूट जाएंगे, अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे. And if we are disrespectful to our husbands, then he will not be able to reach his potential. You see, we learned 4 things, 2 for the husbands, 2 for the wives. और हमने 4 चीजें सीखे, 2 पतियों के लिए और 2 पत्नियों के For the लिए. husbands, love and lead. और पतियों के लिए प्यार करे और नेतृत्व दे. For the wives, submit and respect. और पत्नियों के लिए अधीन रहे और रिस्पेक्ट करे. और जब मैं बात कर रही थी, एक पॉइंट बताना भूल गई. As I was speaking, I forgot one thing. मेन चीज ये है कि हम अधीन रहते हैं और रिस्पेक्ट करना, ये दोनों हमारा काम है. We need to respect and we need to submit. That both these things are our duty. लेकिन उन पारिवारिक जीवनों में जहाँ पे पति abusive है, But in those places where the husbands are abusive, यदि कोई ऐसा है जिसका पति abusive है, उसके लिए सबमिट करना और रिस्पेक्ट करना मुश्किल भी है, कई बार डेंजरस भी है. but in such families where there is physical and there is abuse in the house,
those families, it is difficult and also dangerous for your life to be submissive and respecting your husband. तो ऐसे कंडीशंस में ब्लाइंडली इसको फॉलो ना करें, लेकिन यू नीड टू सीक हेल्प। आप किसी का मदद, खासकर स्पिरिचुअल अगुओं का मदद लेना आपके लिए जरूरी In है। those places you need to seek spiritual help, and not just spiritual help, you also you need to receive spiritual help from spiritual leaders, and also if it is an abusive relationship, you need to seek help from the correct authorities. We've been looking at different things about for the husbands and the wives. और हम पतियों के लिए और पत्नियों के लिए अलग-अलग बातों पे ध्यान दे रहे You थे। see, both of us, when you see both of us together, जब आप हम दोनों को एक साथ देखते you हैं, guys will say, "Wow, what a nice couple." आप बोलेंगे वाह कितने अच्छे Yep. दंपति हैं। They both are preaching. वो दोनों प्रचार कर रहे They हैं, both are translating for each other. वो एक दूसरों के लिए ट्रांसलेट कर What रहे a हैं। wonderful couple. कितना अच्छा दंपति। But it is hard work. लेकिन बहुत मुश्किल का काम। We think differently. हम सोचते अलग-अलग हैं। We do things differently. हमारा काम करने का तरीका भी अलग-अलग है। But लेकिन when we together work for our marriage, एक साथ मिलकर पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। like Shiva said, God looks at us and says, "It is good." जैसे शिवा ने कहा कि परमेश्वर देखता है और कहता है अच्छा है। God wants every husband to reach his potential. परमेश्वर चाहता है कि हर एक पति उसका उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे। And understand it that your wife was given for you to reach your potential. और इस बात को समझे कि आपको पत्नी परमेश्वर ने जो दी है आपकी पोटेंशियल पहुंचने के लिए And है। at the same time, as a husband, it is my duty to release my wife towards her potential. और उसी तरह एक पति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पत्नी को उसका मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मैं उसे छोड़ूं। As a husband, I should never stop her from dreaming. और एक पति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी को उसके सपने पूरा होने से मैं रोकूं ना। Never stop her from living out her dreams. और उसका सपना पूरा होने के लिए या उसकी बुलाहट को पाने के लिए उसे मैं रोक ना सकूं। I remember Uncle Yusuf sharing his testimony sometime. Auntie Margaret actually sharing her testimony some time back. और मैं याद कर रहा हूँ कुछ टाइम पहले आंटी मार्गरेट ने उनकी गवाही दी She थी। said she had lots of files to do from her office. और उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस से उनको बहुत सारे फाइल्स मिले करने। She came home वो घर आई with the files. सारे फाइल उठाकर, But her husband और लेकिन उनके पति sat with her and enabled her to do her office work. और उनके साथ बैठकर उनके ऑफिस का काम रात के 2 बजे तक बैठ कर रहे थे। Yeah, I don't remember the time, but yeah, she remembers the time. That's why she's my translator. We have a spouse. हमें परमेश्वर ने एक पति को एक सहायक And your spouse, whether husband or wife, is the best thing God did for you. और आपके लिए जो आपके पति हैं या पत्नी हैं वो परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई सबसे अच्छा तोहफा है। Go home आपके घर जाए and just tell your wife or tell your husband, आपके पति से कहे या पत्नी से कहे, "You're the best thing God did for me." मेरे लिए प्रभु ने जो किया है उसमें सबसे उत्तम चीज वो आप हो। I could not do better. मैं इससे बेहतर नहीं कर Shall we सकता। bow our heads? हम अपने सिरों को झुकाएं।